Explain how Enid can obtain relief for the trading losses of 51,000 brought forward in her unincorporated business on 6th of April. Enid requires advice on CGT and VAT, implications of transferring her unincorporated sole trader business to a newly incorporated company, Niche Limited, and the tax implications of alternative ways of extracting profits from the new company. Enid has been in the business as an unincorporated sole trader for many years, receives dividends from a portfolio of investments of £500 each year, has no other source of income, is a higher rate taxpayer for all relevant tax years, will transfer all the assets of her business to Niche Limited on 1st of October 2025. Will make no other disposals for CGT purposes in the tax year 25-26. Will be the only director and shareholder of Niche Limited. At 1st of October, Enid had trading losses brought forward of 51,000. In the year ending 30th September, Enid's business will have a taxable trading profit of 42,000 prior to the transfer of Niche Limited. It is registered for the purposes of value added tax. ठीक है. अब how can she obtain relief for trading losses brought forward of 51,000? चलो. How can she claim these losses? There is a new company that has been incorporated and the entire business has been transferred to that company. ठीक है. Now one way in which अभी business तो बंद हो गया, sold मतलब जो unincorporated business था, that is that is closed down. Normally क्या होता है, brought forward losses are automatically set off against with profits of the same trade, right? Init के losses कितने हैं? Total losses are 51,000। 51,000. What other information is given to you? 42,000 है ना सर 30th सितंबर तक। Okay. सो ही कैन सेट ऑफ अगेंस्ट दैट। In the year ending 30th September, Enid's business will have a taxable trading profit of 42,000 prior to transfer to Niche Limited. So 51 का total loss है, 42 का profit है, तो 51 adjusted against 42, 9,000 remains unrelieved. ठीक है. अब अब क्या होगा? Now the business has been, अभी जैसे a new company was formed, right? And the business was transferred to that company. तो now, what happens is whatever income that Enid derives from this company, she will be able to adjust her losses against the income that she has derived from this company. Do you agree? है ना? अब सर what you लेकिन फर्स्ट 5 इयर्स तक तो इट कैन नॉट डू ना सर। नो दैट्स इन द केस ऑफ ग्रुप्स आई थिंक। yeah, that's pre-entry losses in group companies. यहाँ पे तो whatever loss she has, unrelieved loss, the income that she earns from the company, against that income, be it salary income or whatever, this loss can be adjusted against that income. है ना? ओके तो इट इज लाइक इंडिविजुअल का वो टोटल इनकम वाला रिलीज सर। करेक्ट करेक्ट. सो कितना होगा? But then there is a condition. The shares have to be retained for a particular duration to be able to claim that relief, right? Have they told us how much money she will get from, मतलब कंपनी से क्या क्या पैसा मिलेगा? Enid will, सैलरी। Niche Limited will pay Enid a salary of 75,000 per year and dividend of 15,000 on 31 March each year. It is adjusted against first available income from the company. है ना? So her total salary is 75,000, right? यस सर। उसको 6 months का कितना रहेगा? 75,000 इंटू 6/12, 37,500. ठीक है. Now, what are the conditions that she should hold these shares for how much duration to be able to make the claim? At least till the end of year 25-26 उसको करना पड़ेगा, right? To be able to make the claim. 37,500 के against she can adjust the loss of 9,000. ठीक है. सर टू सेट अगेंस्ट टोटल इनकम ऐसा कुछ नहीं है ना। यू आर नॉट, आपको प्रोविजन याद नहीं आ रहा है. याद करो, विच रिलीफ इज दिस?
This is a special relief that is available when. BADR. नो नो, दिस इज नॉट BADR। याद करो रिलीफ के नाम। BADR, इन्वेस्टर रिलीफ, करो एक एक करके। ट्राई टू रिकलेक्ट। वेयर डज दिस फॉल BADR। इन? हाँ। BADR, IR, रोल ओवर, गिफ्ट होल्ड ओवर, EIS, SEIS, और कौन सा है? एनीथिंग रिलेटिंग टू इन व्हाट इज इनकॉर्पोरेशन रिलीफ? ये इनकॉर्पोरेशन रिलीफ का एग्जाम्पल है कि नहीं? क्या है ये? यस सर। हाँ, इनकॉर्पोरेशन रिलीफ। क्या याद है आपको उसका? बट वो तो CGT का है इनकॉर्पोरेशन रिलीफ। यहाँ पे कैसे? इनकॉर्पोरेशन रिलीफ इज अ CGT वाला रिलीफ, राइट? हाँ, यहाँ पे क्या आएगा फिर? कि नहीं, इट इज इनकम टैक्स का रिलीफ, याद करो। इनकॉर्पोरेशन रिलीफ तब भी अप्लाई होता है ना जब अपना बिजनेस सेल कर देते हैं ओके, ड्यू टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ अनदर कंपनी। चलो आई विल शो यू। एक सिसेशन ऑफ बिजनेस वाला डिस्कशन याद है आपको? यस ये सर। देखो, ये देखो, रीड दिस। इनकॉर्पोरेशन रिलीफ अगेंस्ट फ्यूचर इनकम फ्रॉम द कंपनी। याद आया? यस सर, गॉट इट। यही प्रोविजन है। सो यू सी, हर क्वेश्चन में एक कुछ ऐसा है विच इज स्लाइटली डिफरेंट, है ना? यस सर। अभी इज इट क्लियर? यू हैव टू कीप शेयर्स टिल द एंड ऑफ 25-26 टू बी एबल टू क्लेम दिस रिलीफ, राइट? ओके सर। सी, अभी ATX में ना, दिस इज द गुड पार्ट कि एक बार प्रोविजन पढ़ लो, फिर एक बार प्रोविजन अगर आपको याद है तो फ्रेमिंग द आंसर इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, राइट? बट यस प्रोविजन सर। याद आना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बहुत फाइन न्यूआंसेस है कि कहीं से भी दे आर naturally going to ask you, right? So just be prepared. Now, explain why the transfer of Enid's business to Niche Limited qualifies for incorporation relief, and on the assumption that Enid does not elect to disapply the relief, calculate the balance on her loan account with Niche Limited after deducting the cash to be withdrawn to pay any CGT due. What is this part of the question for 7 marks? इधर क्या करना है आपको? See, business way has been transferred as a going concern. All assets are transferred. Consideration is in shares, right? पूछा क्या है आपको? ये तो चलो है, एप्लीकेबल है। बैलेंस ऑन अ लोन अकाउंट विथ नीश लिमिटेड आफ्टर डिडक्टिंग द कैश टू बी विड्रॉन टू पे एनी CGT। ठीक है। अब व्हाट इज द CGT दैट दिस पर्सन हैज टू पे? लेट्स कैलकुलेट दैट, एंड देन उसका कुछ लोन रिलेटेड एडजस्टमेंट करना है। बट टू डू दैट वील हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द CGT। ठीक है। अब यहाँ पे चेक करो, गुडविल में कितना गेन होगा? 1 लाख। गुडविल में 1 लाख होगा। वर्कशॉप में? 67,000। इन्वेंट्री तो है नहीं, लाइबिलिटीज तो है नहीं, राइट? अब गुडविल है, वर्कशॉप है। नाउ टोटल गेन्स आर 1,67,000, राइट? अब इधर कोई रिलीफ अप्लाई होगा कैपिटल गेन्स वाला? वापस इनकॉर्पोरेशन रिलीफ होंगी। ओके, हाउ डज द इनकॉर्पोरेशन रिलीफ वर्क नाउ? टोटल गेन इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल कंसिडरेशन। ओके, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल कंसिडरेशन। ओके, सो यहाँ पे टोटल कंसिडरेशन कितना है? 1,67,000। Tell me. 1,67,000 is the total consideration. Share consideration?
कुछ एक परसेंटेज कैन यू कैलकुलेट हियर? डायरेक्टली दिया हुआ है ना सर फर्स्ट पॉइंट? नहीं, नीचे 85%। हाँ। 85%, right? यस सर। Consideration to be paid by niche $1,000 on ordinary shares in respect of the 85% of total value of consideration for the business. So, very clearly, they have given. So, you don't need to, spend time in getting that ratio. Total relief, sorry, total gain इतना, इसका 85% 141,950, बचा कितना? ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी जीरो फाइव फाइव जीरो ठीक यस। है। अब ये जो 25050 है, इसमें से व्हाट इज द गेन एट्रीब्यूटेबल टू वर्कशॉप? गेन एट्रीब्यूटेबल टू गुडविल। गुडविल को अप्लाई होगा दिस इन 200 अपॉन 167। इसको कितना होगा? इंटू 67 अपॉन 167, राइट? यस सर। सॉरी, दिस इज 25050 इंटू 100 अपॉन 167 and 25050 into 67 अपॉन 167। ये हो गया आपका अभी चार्जेबल गेन, है ना? अब विच रिलीफ क्वालिफाइज फॉर बीएडीआर, विच डज नॉट क्वालिफाई फॉर बीएडीआर? पूरा का पूरा बिजनेस हैज बीन ट्रांसफर्ड, तो बीएडीआर यस। तो मिलेगा, राइट? बट कौन से गुडविल पे मिलता है बीएडीआर? गुडविल पे तभी मिलेगा अगर वो होल्ड कर रहा है लेस देन 5% इन द न्यू कंपनी। इज दैट द केस? नो। ओके, सो गुडविल पे नो बीएडीआर, यस सर। एंड वर्कशॉप पे बीएडीआर। बीएडीआर। तो 15,000। अच्छा, इसमें से यू विल सब्ट्रैक्ट एईए राइट फ्रॉम हियर, बिकॉज यहाँ पे बीएडीआर नहीं है, तो यू शुड सब्ट्रैक्ट 3,000 हियर। 10050 विल रिमेन एज इट इज। उस पे कैलकुलेट सीजीटी लाइबिलिटी, ठीक है? 15,000 माइनस 3,000 इंटू 20%, राइट? एंड 10050 इंटू 10%, 3405, है ना? थ्री फोर यस जीरो सर। फाइव विल बी द टोटल सीजीटी। पूछा क्या है आपको? आपको पूछा है इन द क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई द ट्रांसफर ऑफ, ठीक है, ये हो गया। कैलकुलेट द बैलेंस ऑन अ लोन अकाउंट विथ नीश आफ्टर डिडक्टिंग द कैश टू बी विड्रॉन टू पे एनी सीजीटी। व्हाट इज द बैलेंस ऑफ अ लोन अकाउंट विथ नीश टू बिगिन विथ? हैज शी गिवन अ लोन टू द कंपनी? और मतलब कैसे निकालना है इसको? व्हाट डू यू थिंक शुड बी द अप्रोच? अच्छा, what all did she give to the company? She gave goodwill, work inventory, workshop, right? ये सब उसने कंपनी को दे दिया। And what is टेन the value थाउजेंड of net लाइबिलिटी। assets? 2,20,000, यस सर। है ना? अब कैसे करेंगे? सी, ये जो टोटल नेट कंसिडरेशन है, टोटल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, इसका 85% सेटल वाया शेयर्स, तो रिमेनिंग जो है 15% वैल्यू, what is the total value of net assets that she has transferred? 220। उसका 85% के अगेंस्ट उसको शेयर्स मिला, तो 15% के अगेंस्ट उसको मिला रहा है, शी मस्ट हैव रिसीव्ड कैश, यस सर। मस्ट रिसीव कैश, राइट? ओके, अब अगेंस्ट दिस यू एडजस्ट द सीजीटी लाइबिलिटी। 33,000 माइनस 3,405, 29595,
राइट? सर वो 33,000 इज ऑल्सो चार्जेबल एट द टाइम ऑफ कॉपरेशन ना सर? इज इट? हाँ मतलब इफ दैट इन्वेस्टर्स इन इनकॉर्पोरेशन रिलीफ हो गया तो उसके बाद जो गेन चार्जेबल होएगा दैट विल बी 33,000। ओके, व्हाट डू दी अदर्स हैव टू से ऑन दिस? सी यहाँ पे लिखा है इनेट विल विड्रॉ क्या, द रिमाइंडर ऑफ द कंसिडरेशन विल बी लेफ्ट ऑन लोन अकाउंट पेएबल बाय नीश टू इनेट। तो ये जो 33 है, व्हाट दे हैव रिटन इज 33,000 इज नॉट सेटल्ड इन कैश, कंपनी हैज ट्रीटेड इट एज अ लोन, मतलब इमीडिएटली कैश नहीं दिया, द कंसिडरेशन विल बी पेएबल इन द फ्यूचर। ठीक है, दिस इज व्हाट इट मीन्स। यस And सर। Enid will withdraw cash from the loan account to pay any CGT liability arising on transfer of business. तो 3405 उसने विड्रॉ कर लिया, राइट? ओके हाँ सर। तो बचा कितना? 29595। ओके सर। मतलब वो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिया था, दैट इज वाई। फिर यस सर अंडरस्टूड। ओके, नाउ advise Enid of the impact on the total amount of tax payable by both herself and Niche Limited if, instead of a dividend of 15,000, she receives additional salary of 15,000, or alternatively withdraws 15,000 from her loan account in the tax year 26-27। ठीक है, now you should assume that there will be sufficient funds in Enid's loan account to permit this withdrawal. Tax payable by both herself and Niche Limited if, instead of dividend of 15, she receives additional salary of 15. What will be the tax implication? Higher rate taxpayer sir, so into 40% and NIC. Of 2%? तो Yes. बेसिकली 42% इम्पैक्ट आएगा उस पे, राइट? एंड एम्प्लॉयर पे क्या होगा? क्लास वन एम्प्लॉयर एनआईसी होगा एट द रेट ऑफ 13.8%। Yes sir. But increased salary and increased NIC are deductible for corporate tax purposes, right? Yes So sir. either Enid will pay 40% income tax, 2% NIC. Company will pay employer class 1 NIC of 13.8. Correct? Yes sir. And then later, of course, whatever salary you have paid her and this thing, उसका आपको deduction मिलेगा. So there will be a corporate tax saving. Correct? लेकिन उसको मेन रेट पे ही लेना है सर 25%? What is the, कुछ दिया है कंपनी के बारे में? How much profit will the company make or whatever? नहीं। नहीं। तो फिर what should you do? Should you take 25? Should you take 19? Should you take the marginal relief के बाद वाला 26.5? What should you do? डोंट नो सर, और शुड वी जस्ट मेंशन? अच्छा, read the requirement in the question. Advise the impact on total amount of tax. तो मतलब आपको अमाउंट स्पेसिफाई करना पड़ेगा यहाँ पे, राइट? यस सर। Now which rate was the first thing that came to your mind? मेन रेट 25%। अच्छा, यहाँ पे लिखा है नीश लिमिटेड विल हैव टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 2 लाख। ओके। तो 19 होगा, 25 होगा, या इज इट अबव द अपर थ्रेशोल्ड और बिलो द लोअर थ्रेशोल्ड की दोनों के बीच में है? दोनों के बीच में है 26.5। 26.5 दोनों के बीच में है, ठीक है। तो फिर 26.5 का रेट लेना पड़ेगा, है ना? यस यस सर। एंड व्हाट इफ शी विड्रॉज 15,000 फ्रॉम और लोन अकाउंट? तो क्या होगा? नो टैक्स इम्प्लीकेशंस पर से, राइट? ओके सर। है ना? यस सर। आई शो यू द आंसर एट द बैक। अच्छा, डिविडेंड पे किया तो नेचुरली देयर इज नो एनआईसी, है ना? एनआईसी कब आता है? जब इट इज एम्प्लॉयमेंट इनकम। डिविडेंड पे कोई एनआईसी नहीं है। यस सर। हैव अ क्विक लुक।
देख लो, दोनों देख लो। अंडरस्टूड सर। ठीक है, चलो। Advice Enid of her admin obligations under the VAT legislation arising from transfer of her business to Niche Limited, and whether or not she is able to transfer the VAT registration from her unincorporated business to Niche Limited. ठीक है, or you should assume that transfer of going concern rules apply for VAT purposes but are not required to discuss these rules. Very clearly they have mentioned कि don't discuss the rules. ठीक है, चेंज इन लीगल स्टेटस ऑफ बिजनेस हो रहा है, अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस से कंपनी हो रहा है, राइट? सो कंपनी का सेपरेट वैट रजिस्ट्रेशन होगा। यस सर। कैन वैट रजिस्ट्रेशन नंबर बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द इंडिविजुअल बिजनेस टू नीश लिमिटेड? Yes, it can be. In which case, Niche Limited will have to take over all the assets and liabilities of the business in respect of VAT at the date of transfer. कोई अगर वैट रिसीवेबल होगा तो भी इट विल गो टू नीश लिमिटेड। वैट पेएबल लाइबिलिटी होगा तो भी इट विल गो टू नीश लिमिटेड। फिर यस सर। 3 ही मार्क का क्वेश्चन है, बोला है, ठीक है, स्पेसिफिकली बोला है कि कुछ चीजें मत करना। सो डोंट डू दैट, यू डोंट हैव टू डिस्कस द रूल्स रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न। मेक सेंस? यस सर।